Hello students, and today we are going to start our new lecture, that would be our lecture number 2. Yesterday in our previous lecture we have started about the epithelial tissue, and I have told you that what are the basic characteristic feature of a epithelial tissue. That epithelial tissue are those tissue which grow upon other tissues. Epithelial tissue are resting on a non-cellular membrane, and name of that membrane is basement membrane. Moreover, I told you that epithelial tissue is having a good power of regeneration. They are having a very little intercellular space, and because of that blood vessels, lymph vessels, they do not pass through epithelial cell, and epithelial tissue is avascular. Then we have classified epithelial tissue on the basis of number of layers. Either they are single layered or they are multiple layered. If they are single layered, we call that simple epithelium, and depending upon the shape of cell, we classify them as squamous, columnar, cuboidal and pseudostratified. Moreover, the compound epithelium, it was multi-layered, it could be stratified, or it might be having a feature of stretchability, and that was your transitional. Today we have to start with simple epithelium, but before really starting with simple epithelium, I will love to tell you about some basic modification of plasma membrane. In simple epithelium, we are going to learn about presence of microvilli, presence of cilia and presence of stereocilia, and certain other property of a cell which is exocytosis and endocytosis. So, first let us be clear about these special modification of plasma membrane, and then we will be starting our simple epithelium. Alright. So, let us start with specialization of plasma membrane. First, I will be telling you about basic structure of plasma membrane, how it look like. I will be doing it in a very brief, because structure of plasma membrane you have to learn in your chapter cell biology. Let us say, just imagine that this is a cell here, and the outer boundaries of cell is referred as to plasma membrane. That is your extracellular environment or extracellular fluid, and that is your intercellular fluid. This plasma membrane is made up of lipid bilayer, and certain proteins are there. In case at certain places the plasma membrane become like this. There are certain finger like extensions of plasma membrane, and these finger like extension of plasma membrane we are learning that from our very basic classes, and finger like extension of plasma membrane is referred as to microvilli. तो जो विलाई वर्ड है वो फिंगर लाइक से हैं, एंड दीज आर वेरी स्मॉल, सो वी कॉल दैट माइक्रोविलाई. तो पहले स्पेशलाइजेशन की बात करूं मैं, लेट्स कॉल दैट माइक्रोविलाई. और माइक्रोविलाई को आप डिफाइन करेंगे कि जो माइक्रोविलाई होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं. और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? माइक्रोविलाई, अगर आप माइक्रोविलाई को स्ट्रेट करेंगे तो स्ट्रेट मेम्ब्रेन वुड बी लाइक दिस. तो जो माइक्रोविलाई है वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं. तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन ये था, और अगर इसके अंदर माइक्रोविलाई आ जाता है तो अब ये मेम्ब्रेन इतने ही पार्ट में एक्वायर करेगा. तो माइक्रोविलाई का काम ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सपोजर है टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वो बढ़ जाता है, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा. तो जहाँ जहाँ पर माइक्रोविलाई आएंगे, फर्स्ट माइक्रोविलाई आपका फर्स्ट थिंग ये नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं. और जो माइक्रोविलाई होते हैं वो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, द वेरी बेसिक कंसेप्ट. अब जहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू में माइक्रोविलाई आएगा वहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि ये एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है. माइक्रोविलाई भी हम दो तरह से पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपके पास पूरा एपिथेलियम था और उसमें कुछ प्लेसेस पे माइक्रोविलाई है, कुछ प्लेसेस पे माइक्रोविलाई नहीं है, माने यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोविलाई नहीं है. तो मैं ये समझूंगा कि भाई इसके पास एपिथेलियम के पास माइक्रोविलाई है तो ये एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है, पर ये हाईली स्पेशलाइज नहीं होगा एब्जॉर्प्शन में. केस नंबर 2 अगर हम इसको ऐसे समझें कि मेरे पास एक एपिथेलियम है और वो ऑल थ्रू द एपिथेलियम माइक्रोविलाई वाला है, तो जब ऑल थ्रू द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर माइक्रोविलाई है तो अपीयरेंस कैसा आ जाएगा? ब्रश बॉर्डर्ड आ जाएगा. तो आगे हम जिक्र करेंगे कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू के पास अबंडेंस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाएंगे और उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, और उसका काम क्या होगा? इट इज द वन विच इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई, वेरी बेसिक, हम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. सेकेंड मॉडिफिकेशन पर आते हैं. लेट मी टेल यू द कंसेप्ट ऑफ सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया. तो जब आप सीलिया को समझते हैं, सीलिया क्या होता है? आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन के एक्सटेंशंस आते हैं. दे आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, एंड
दे आर हैविंग ए 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। मैं फिर ज़्यादा डिटेल में ना जाके, क्योंकि सेल बायोलॉजी का पार्ट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास सेल के ऊपर कुछ हेयर लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, और जो हेयर लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और साथ में जो हेयर लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं आपका ये कनेक्ट करते हैं विद द बेसल ग्रेन्यूल्स और बेसल बॉडी। सो हेयर दे वुड बी बेसल बॉडी और बेसल ग्रेन्यूल्स। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेसल ग्रेन्यूल से कुछ हेयर लाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर अराइज होंगे जिनको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया के पास 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होगा। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर कि ये आपके पास मोटाइल होंगे और ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी होंगे। तो आप सीलिया और माइक्रोविलाई को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? माइक्रोविलाई एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, जबकि जो आपके पास सीलिया हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, हेयर लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करते हैं विद द बेसल बॉडी। सीलिया के पास 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है, आई मीन टू से 9 प्रोटीन्स आउटर रिंग में होगा, 2 प्रोटीन सेंटर में होगा। और सीलिया मोटाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और सीलिया हमेशा पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सीलिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, आंसर इज यस। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर सीलिया है और वो सीलिया की हेल्प से ही मूव करते रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जब हम हॉलो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीलिया आ जाएगा, और सीलिया की वजह से आपके डस्ट पार्टिकल को प्रोपेल कर रहे हैं, ओवा को प्रोपेल कर रहा है, CSF को प्रोपेल कर रहा है, एंड सो ऑन। पर याद ये रखना है कि सीलिया हमेशा प्रोपेल करता है पार्टिकल को इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं प्रोपेल करता। तो ऐसे स्टेटमेंट मिल जाएगा कि वो बीट करते हैं बैक एंड फोर्थ और पार्टिकल को प्रोपेल करते हैं इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब सीलिया जिन सेल के ऊपर आएंगे उनको हम बोल देंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। देन एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रियोसीलिया। नाम से पता चल जाता है कि सीलिया ट्रू सीलिया नहीं है, तो बच्चा अक्सर ये बताता है कि भाई जब सीलिया नॉन मोटाइल हो जाते हैं उनको स्ट्रियोसीलिया कहते हैं, जो एकदम गलत है। स्ट्रियोसीलिया को आप ऐसे समझेंगे कि जो सीलिया है वो आपके प्रोटीन एक्सटेंशंस हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्सटेंशंस। स्ट्रियोसीलिया लाइक माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं। नो डाउट उनके अंदर भी थोड़ा बहुत एक्टिन प्रोटीन होता है, पर स्ट्रियोसीलिया मोर लाइक माइक्रोविलाई होते हैं देन सीलिया। तो आपके पास थिक लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जो देखने में तो सीलिया के जैसे हैं, पर काम कैसा करेंगे? माइक्रोविलाई वाला, उनको बोलेंगे स्ट्रियोसीलिया। अगेन आई रिपीट, जो स्ट्रियोसीलिया होते हैं वो आपके नॉन मोटाइल होंगे, स्ट्रियोसीलिया जो है वो आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे। सो दे आर आल्सो नॉन मोटाइल और दे आर आल्सो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ओके, द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड स्ट्रियोसीलिया? Cilia are connected with basal body, or cilia arise from basal granule. They are having tubulin protein with a arrangement of 9+2, and they are the one which are contractile in nature. Striosilia on the other hand are more like microvilli. They are more thicker and taller than microvilli, but they perform the same function. And what function they perform? They perform absorption. Striosilia हमारे बॉडी में मेल्स में आई विल से डेट एपिडाइमिस वासा डिफरेंशिया में प्रेजेंट होंगे, और इन केस ऑफ फीमेल एज वेल एज मेल वो इंटरनल ईयर में भी होंगे। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन, तो मैं आपसे बताऊंगा कि उनका जो एपिकल पार्ट होता है वो स्ट्रियोसीलिया के जैसा हो जाता है, और जो स्ट्रियोसीलिया वाला है वो वहाँ पे लोकेशन लिख देंगे। फिर एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन मैं बताता हूँ कि आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर इंटरसेलुलर फ्लूइड और बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जब भी कोई सेल सॉलिड फॉर्म में किसी चीज़ को इनगल्फ करती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस होता है बच्चे इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन सॉलिड फॉर्म। आई रिपीट, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में जा रही है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। केस नंबर 2, अगर कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में था और सेल उसको इनगल्फ कर रहा है तो इसको बोल देते हैं पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस और लेट्स कॉल दैट सेल ड्रिंकिंग। तो आपको बुक्स में ना ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड मिल जाएंगे, फैगोसाइटोसिस के वर्ड यूज करेंगे आप सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस में कोई भी चीज़ है वो सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ हो रहा है, इसके लिए वर्ड यूज कर देंगे सेल ड्रिंकिंग। और पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों ही एंडोसाइटोसिस के टाइप होते हैं, और कोई भी चीज़ अगर सेल बाहर फेंक के मार रहा है, सेल बाहर वॉमिट आउट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आगे चल के जब टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे और मैं आपसे बता दूंगा कि भाई ये जो ये मेम्ब्रेन होता है ये पिनोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ये मेम्ब्रेन फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, या ये मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है, तो ये आप जो है कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रख लेंगे। ठीक है,
अब कल हमने लेक्चर रोका था अपना सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन पर, और आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में कि सिंपल एपिथेलियम को हमने नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स, और कौन सा एपिथेलियल कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम में जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दैट वुड बी योर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल, अगर मैं फिर से आपसे एक बार पूछूं कौन सा होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल होता है वो सिंगल होता है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसा होगा और कहाँ पर होगा और क्या क्या काम कर रहा होगा, बस 2-3 कंसेप्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का प्रॉपर्टी ही ये होता है कि एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करता है एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पर, और उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन का नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो लेट्स से दिस हियर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपके पास फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर ये एपिथेलियल सेल है। अब एक तरीका है कि मैं उसको साइड से नजर करता हूँ, जब मैं उसको साइड से दिखूंगा तो मुझे नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी नजर आएगा और ऊपर एपिथेलियल टिश्यू नजर आएगा, और दूसरा तरीका है मैं उसे ऊपर से देखता हूँ। तो जब मैं उसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ एपिथेलियल सेल नजर आएंगी, ना बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आएंगे, ना कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा। तो मैं उसका एक साइड व्यू बना देता हूँ। इन योर साइड व्यू जो आपके पास सेल होंगी इन स्कैमियस दे वुड बी समथिंग लाइक दिस। फ्लैट सेल होती हैं, इनका न्यूक्लियस फ्लैटेंड होता है पर वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। सीरीज ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल विच आर हैविंग इरेगुलर बाउंड्रीज, और हमारे बॉडी में जितनी भी डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनती हैं वो सारी की सारी किस एपिथेलियम से बनती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो इनके पास सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई होगा, इनका न्यूक्लियाई राउंडेड ना होकर फ्लैटेंड होगा। तो अगर सिंपल स्क्वैमस को डिफाइन करें तो आप लिखेंगे दे आर हैविंग इरेगुलर फ्लैट सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। दे आर हैविंग फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जब आप उसे सामने से जब आप उसको साइड से देखते हैं तो आपको कैसा नजर आता है, समथिंग लाइक दिस। और जब आप उसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू में आपको वो कुछ ऐसा नजर आएगा। अगेन लेट्स से आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेट मी टेक दिस पार्ट ऑफ बोर्ड, और सामने से जब आप उसको ऊपर से देखते हैं तो आपको ना सेल्स टाइल के जैसे नजर आएंगे। द सेल्स वुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट्स से दिस इज वन सेल हियर and these are the irregular boundaries of cell. This is the nearby cell. Moreover, the third cell here, nearby cell. Remember, this is single layer. आपको लग रहा होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सर क्यों बना दें, एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें यहाँ बनाना ही नहीं चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होगा, इन सेल के नीचे होगा, राइट, ओके। और आपके पास जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो सेल का जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो फ्रॉम द टॉप अगर सेल्स आपको कुछ ऐसी नजर आ रही हैं और फ्रॉम द साइड अगर सेल कुछ ऐसी नजर आ रही हैं, तो ये कौन सा एपिथेलियम है, ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर सेल फ्लैट होती हैं, न्यूक्लियस फ्लैटन होता है और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल क्योंकि टाइल के जैसे नजर आ रही हैं, इसलिए इनका एक और नाम होता है, वी आल्सो कॉल्ड इट पेमेंट मेम्ब्रेन। बिकॉज ऑफ दिस अपीयरेंस स्क्वैमस एपिथेलियम इज आल्सो रेफर्ड एज टू पेमेंट मेम्ब्रेन। तो अब अगर कभी भी कोई पूछे कौन से एपिथेलियल टिश्यू का नाम पेमेंट मेम्ब्रेन है, आपका आंसर होगा स्क्वैमस। क्यों इसको पेमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेल का अपीयरेंस होता है वो टाइल लाइक होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू तीनों ही जर्मिनल लेयर से इवॉल्व होते हैं, कल डिस्कस किया था। अब स्क्वैमस एपिथेलियम में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं मेसोथेलियम, एज वेल एज स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंडोथेलियम। कहाँ पर मेसोथेलियम कहते हो, कहाँ पर एंडोथेलियम, पहले तो ये बता देता हूँ और फिर इनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होगा उसके बारे में जिक्र करेंगे। जब हम स्क्वैमस एपिथेलियम को पढ़ रहे होंगे सिलोमिक कैविटीज़ में, सिलोमिक कैविटीज़ क्या होता है, मेसोडर्मली ड्राइड बॉडी कैविटी है जिसमें मेरे विसल ऑर्गन है। तो सिलोमिक कैविटीज़ में स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेसोथेलियम। इट इज़ मेसोथेलियम इन केस ऑफ सिलोमिक कैविटीज़। एंड इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वी कॉल दैट एंडोथेलियम। कल इसका भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था हमने, लाइनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि जनरली आप जब स्क्वैमस एपिथेलियम को देखोगे तो आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल मिलेगा, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं। पर जब हम एंडोथेलियल सेल को या फिर मेसोथेलियम सेल को देखते हैं वो स्ट्रेट ना होकर वो थोड़ी बहुत वेवी हो जाती है। द सेल ऑफ मेसोथेलियम एंड सेल ऑफ एंडोथेलियम दे बिकम वेवी इन नेचर। वेवी का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल अपीयरेंस तो ऐसा है आपका, पर यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। क्योंकि एंडोथेलियम और मेसोथेलियम में स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल वेवी हो जाती हैं, वहाँ पे दूसरा नाम यूज करते हैं टी सेलेटेड। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के ही दो नाम और होते हैं,
एक नाम होता है आपका पेमेंट मेम्ब्रेन। पेमेंट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें टाइल लाइक अपीयरेंस ऑफ सेल होता है। और जो उसका दूसरा नाम होता है वो होता है टी सेलेटेड एपिथेलियम। और उसको टी सेलेटेड एपिथेलियम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ जगह पर जो स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल है वो वेवी हो जाती है। कहाँ कहाँ पर होती है? इन द लाइनिंग ऑफ सिलोम एज वेल एज इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज स्क्वेमियस। अब ये कहाँ पर होती हैं और ये क्या काम कर रही होंगी उसका जिक्र कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। जब लोकेशन की बात करेंगे तो आप ना ये थोड़ा सा याद रख लेना, बॉडी के अंदर जहाँ भी कहीं डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होगी तो ही डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से दूसरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या आई विल से फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो डेट इज योर डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन वहीं पर होगा जहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, डिफ्यूजन कहाँ पर होता है? तो आप बोलेंगे एल्वोलाई के अंदर एयर एक्सचेंज तो डिफ्यूजन से ही होता है। तो जो लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है। फर्स्ट इट लाइंस अवर एल्वुलर सैक, लाइनिंग ऑफ एल्वोलाई। उसके बाद और स्क्वेमस को आप याद रखेंगे, जैसे जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे बच्चों तो आप ना बहुत ज़्यादा पढ़ोगे एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिलरी की लाइनिंग को। ये एंडोथेलियम ब्लड वेसल का वो पार्ट होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। तो एंडोथेलियम या लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और कौन सा पार्ट? कैपिलरीज। कैसी होती है? स्क्वेमस होती है। सेकंड लोकेशन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। जब आप ब्लड वेसल को डिस्कस करते हो तो देखो ब्लड वेसल हमें पहले तो याद आता है कि आर्टरी होता है, आर्ट्रियोल होता है, कैपिलरीज, वेन्यूल और वेन्स। अब आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स और वेन्स ट्राई लेयर्ड होते हैं और ट्राई लेयर्ड होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाता है। जो कैपिलरी है वही सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है और इसके में से तो आराम से चीज़ें डिफ्यूज आउट हो जाती हैं। तो जो भी आपके पास लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में भी कौन सा वाला, तो आप लिख देंगे कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। दे आर ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेन्स में इनर मोस्ट लाइनिंग कहाँ की होगी? स्क्वेमस की होंगी। बाकी बीच की लाइन जो मसल्स हैं और जो फाइबर्स है उसकी हो जाती हैं। एक और चीज़, थर्ड है बाउमेन कैप्सूल। जब आप बाउमेन कैप्सूल को पढ़ोगे, बेसिक क्लास में शायद आपने नेफ्रॉन का डायग्राम भी पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि आपके पास ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड लेके जा रहा है, यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा जिसको ग्लोमेरुलस कहेंगे और ये बाउमेन कैप्सूल होगा। ये आपका इफरेंट आर्ट्रियोल होगा। अगर मैं बाउमेन कैप्सूल बना के दिखाऊं तो जो भी कुछ फिल्टर हो रहा है वो सारा का सारा कौन कलेक्ट कर रहा है? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कलेक्ट कर रहा है, इसको हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। अब बाउमेन कैप्सूल के अंदर वो पार्ट जो ग्लोमेरुलस से अटैच है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल आप पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे आप आगे चल के। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। पूरा का पूरा बाउमेन कैप्सूल स्क्वेमस का होता है। ये आउटर वॉल भी स्क्वेमस का है, ये इनर वॉल भी स्क्वेमस का है। इनर वॉल की सेल मॉडिफाई होकर फुट सेल बन जाती है, पोडोसाइट बन जाती है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। तो अभी तो फॉर द टाइमिंग मैं ये लिख रहा हूँ, लाइनिंग ऑफ बाउमेन कैप्सूल इज आल्सो स्क्वेमस। और बाउमेन कैप्सूल कहाँ पर होता है? जब हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो फिल्ट्रेट जो कलेक्ट करता है वो बाउमेन कैप्सूल करता है। फिल्ट्रेट जो कलेक्ट करता है वो कौन करता है? बाउमेन कैप्सूल करता है। तो भाई लोकेशन, पहला लोकेशन हो गया आपका एल्वोलाई की लाइनिंग, दूसरा लोकेशन हो गया आपका ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, तीसरा लोकेशन हो गया बाउमेन कैप्सूल। फोर्थ लोकेशन पे आते हैं, नेफ्रॉन का वो पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है सॉल्ट के लिए, वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले आल्सो कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वेमस epithelium. Next would be descending limb of loop of Henle. Loop of Henle. तो जब स्क्वेमस एपिथेलियम को हम डिस्कस करते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम है आपका फर्स्ट एल्वोलाई, ब्लड वेसल, बाउमेन कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, एंड देयर इज वन मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट रिमेंबर अबाउट रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस आप कभी क्लास 12th में जाके डिस्कस करोगे बच्चे कि जो रेटेटेस्टिस होता है वो एक नेटवर्क होता है जहाँ से अराइज होती है वहाँ से एफ्रेंशिया, विद इन द टेस्टिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और वो काहे का बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। तो जो सबसे पहला बेसिक एपिथेलियम है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है। सेल फ्लैट होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाती हैं, जहाँ भी डिफ्यूजन होगा वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। ये 5 लोकेशन, और इससे ना हमें नाम, इससे समझ में आ रहा है कि क्या लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज वन मोर,
हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट सिलोमिक एपिथेलियम, जहाँ पे आपने इसको क्या बोला था, मेसोथेलियम। जो भी सिलोमिक एपिथेलियम है, सिलोमिक कैविटीज़ की जो भी लाइनिंग है वो काहे की बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। और यही तो आपको याद हो यहाँ पर तो इसको हमने टी से रिलेटेड बोला था। तो जहाँ भी कहीं एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे कौन सा होना चाहिए एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। जहाँ भी कहीं डिफ्यूजन होगा वहाँ पे एपिथेलियम कौन सा होना चाहिए, स्क्वेमस एपिथेलियम। आई रिपीट इट अगेन, अगर डिफ्यूजन कहीं मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है तो वहाँ पे जो एपिथेलियम होगा स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया फर्स्ट टाइम ऑफ एपिथेलियम के बारे में। तो व्हाट इज द होल सोल फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम? इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द होल सोल फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, तो स्क्वेमस एपिथेलियम दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये आप कह सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये पहला सबसे सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियम हो गया बच्चे। नेक्स्ट, फिर कुछ जगह पर हमारे बॉडी में जो सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। द सेकंड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे कुछ सेल्स, और ये जो सेल्स हैं ये देखने में क्यूबॉइडल इन नेचर है, तो नाम दे दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इन सेल का भी न्यूक्लियर राउंड सेंट्रल होगा, पर उनका न्यूक्लियर फ्लैटेंड था, इनका न्यूक्लियर राउंडेड होगा। तो एक फर्क ये भी होता है स्क्वेमियस एज वेल एज क्यूबॉइडल में कि न्यूक्लियर का लोकेशन तो सेम है, पर एक सेंट्रली लोकेटेड है और एक राउंडेड है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर बहुत सारी जगह तो नॉर्मली यही रहता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और वो सिक्रेटरी इन फंक्शन भी रहता है, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर भी है, और कुछ जगह मॉडिफाई होकर ब्रश बॉर्डर बन जाता है और कुछ जगह मॉडिफाई होकर सिलेटेड बन जाता है। तो मेरे बॉडी की जो लाइनिंग्स हैं कहाँ होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं आपसे सबसे पहले बताऊंगा कि मेरी जो स्वेट ग्लैंड के सेल है वो कहाँ के बने हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। शुरू करते हैं सिक्रेटरी स्ट्रक्चर से। फर्स्ट लोकेशन कहाँ मिलेगा हमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आंसर वुड बी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है, अक्सर ना बच्चे इसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, पर सेबेशियस ग्लैंड इज द नेम फॉर ऑयल ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड, इट इज सुडोरीफेरस ग्लैंड। तो जो आपके स्वेट ग्लैंड हैं दे आर सिक्रेटरी इन नेचर, उनके पास कैसा एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, द वेरी फर्स्ट वन। सेकेंड, आप जब पेनक्रियाज को पढ़ते हैं तो पेनक्रियाज हेटेरोकाइन ग्लैंड है, और उसके अंदर हार्मोन बनाने वाले सेल भी होते हैं और एंजाइम बनाने वाले सेल भी होते हैं। जो हार्मोन बनाने वाले सेल हैं उनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहन, और जो एंजाइम बनाने वाली सेल है वो होते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई। तो जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है वो भी आपकी सिंपल क्यूबॉइडल की होती है, एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाटिक जूस बनाती होंगी, नो फन इन टेलिंग दिस। देन आपका जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का वो पार्ट जो T3 एंड T4 हार्मोन बना रहा है उसको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, और जो थायराइड फॉलिकल है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, थायराइड फॉलिकल। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं अभी वो स्ट्रक्चर बताता जा रहा हूँ जो सिक्रेटरी इन नेचर है। एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स भी बनाते हैं बच्चों, या अगर मैं ये कहूँ कि अगर ग्लैंड है तो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम से ही बना होगा, तो ये गलत नहीं होगा। अब कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना लेंगे, कुछ कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना लेंगे। क्यूबॉइडल में क्लासिकल एग्जांपल कौन कौन सा है, स्वेट ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड। तो कुछ जगह सिक्रेटरी होता है, इतना समझ में आ गया। फिर जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये ना प्रोटेक्टिव लाइनिंग भी बनाता है। आपका जो आईबॉल होता है उसके अंदर 3 लेयर होता है, दिस व्हाइट पार्ट ऑफ आई इज स्क्लेरा, और स्क्लेरा के पीछे होता है कॉरोइड, और कॉरोइड पोस्टीरियर पार्ट पर होगा, जब वो एंटीरियर पार्ट पर आएगा तो उसको सिलेरी बॉडी कहेंगे, और वही मॉडिफाई होकर आइरिस बन जाएगा। इसको नॉर्मली हम पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई कहते हैं, और जो पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई है वो बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो एक और लोकेशन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कॉरोइड में पोस्टीरियर मिडिल लाइनिंग ऑफ आईबॉल से शुरू करता हूँ, आगे चल के यही क्या बन जाएगा, सिलेरी बॉडी, और आगे चल के लास्ट में जो कलर ऑफ आई हमारा दिखता है वो आइरिस की वजह से दिखता है। तो ये पिगमेंटेड लेयर है ये भी कहाँ की बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुड बी सिक्रेटरी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुड बी पिगमेंटेड,
अब थोड़ा मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। जस्ट इमेजिन दो अलग अलग केसेस हम पढ़ेंगे। केस नंबर 1 कि क्यूबोइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई आना शुरू हो गया है एंड ऑल ओवर द सरफेस इट इज हैविंग माइक्रोविलाई। तो व्हाट शुड बी द नेम? मैंने बताया था आपको, अगर जब माइक्रोविलाई होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ होती है? तो क्लासिकल एग्जांपल है पीसीटी में। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ होती है? तो क्लासिकल एग्जांपल है पीसीटी। व्हाट इज पीसीटी? इट इज प्रॉक्सिमल convoluted tubule of our nephron. अब attention, just imagine this thing, my hand is PCT, then loop of Henle, this part is DCT. PCT के अंदर भी माइक्रोविलाई होते हैं और DCT के अंदर भी माइक्रोविलाई होते हैं। PCT के जो माइक्रोविलाई है वो न्यूमेरस इन नंबर है, तो उसको बोल देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड। और DCT में जो माइक्रोविलाई है वो ऑल थ्रू द सरफेस नहीं होते हैं, तो माइक्रोविलाई वहाँ पर भी है पर वो कैसा है? नॉट ब्रश बॉर्डर्ड। तो PCT और DCT दोनों की लाइनिंग में कैसी सेल होंगी? आंसर वुड बी क्यूबोडियल। आई रिपीट, PCT एज वेल एज DCT। DCT इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर भी आपके पास क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, पर प्लीज ये याद रख लें इसके अंदर भी माइक्रोविलाई होता है, बट दे आर नॉट ब्रश बॉर्डर्ड। दे आर हैविंग माइक्रोविलाई, बट वो माइक्रोविलाई इतने ज्यादा नहीं कि उसके लिए हम वर्ड यूज करें ब्रश बॉर्डर्ड। सो दीज आर हैविंग माइक्रोविलाई बट नॉट ब्रश बॉर्डर्ड। तो मेरा जो मेजर रीएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है मेरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और वहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई है। फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मेरा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहाँ पर भी माइक्रोविलाई है पर वो ज़्यादा न्यूमेरस नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया दे आर नॉट ब्रश बॉर्डर्ड। तो सम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स, सम प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड सम एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो गैमेट फॉर्मिंग सेल होती हैं, सी मैच्योर गैमेट सेल्स आर स्पर्म एंड ओवम, पर जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। तो टेस्टिस का जो लाइनिंग होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग होगा एग्जैक्टली वो क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना होगा। सिमिलरली जो ओवरीज का लाइनिंग होगा वो क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना होगा, और उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो वन मोर लोकेशन, क्यूबोइडल एपिथेलियम आल्सो लाइन्स seminiferous tubules in case of males and ovaries in case of female. I repeat, जितने भी गैमेट्स हैं ये आगे चल के अपने सेलुलर डिवीजन शुरू करेंगे, पहले माइटोसिस करेंगे फिर मियोसिस करेंगे, पर जो गैमेट मदर सेल होती है वो कैसी होती हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम की होती है। यहाँ पर इनका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। Here we call them germinal epithelium. तो क्यूबोइडल एपिथेलियम के कुछ एग्जाम्पल, कुछ मॉडिफिकेशन इट्स वर्थ मेंशनिंग। अभी सिलिएटेड हमने कवर नहीं किया तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। क्यूबोइडल एपिथेलियम सेक्रेटरी होती है, क्या क्या याद रखेंगे सर? स्वेट ग्लैंड में होती है, पैनक्रियाज में होता है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आपका थायराइड फॉलिकल में भी होता है। आपकी आंखों का जो कलर है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम की वजह से है, क्योंकि आइरिस के अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम है। आइरिस से ही सिलेरी बॉडी और एक्सटेंशन होकर कॉर्ड बनता है, वो क्यूबोइडल एपिथेलियम का है। फिर आपको याद रखना है जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबोइडल होती है। टेस्टिस ओवरीज के अंदर भी क्यूबोइडल एपिथेलियम है जो गैमेट बनाती है, उसी को जर्मिनल एपिथेलियम कहा। और पीसीटी डीसीटी में भी क्यूबोइडल एपिथेलियम है। पीसीटी में उसको ब्रश बॉर्डर कह देते हैं क्योंकि खूब सारे माइक्रोविलाई है, और डीसीटी में उसको नॉट ब्रश बॉर्डर कहते हैं, राइट। एक और लोकेशन सुने आप, देयर इज वन मोर। फिर हम क्यूबोइडल एपिथेलियम के पास चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम में ये आपके पास नॉर्मल क्या था? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपके पास सेल्स थी। रिमेंबर, मैं भले ही सेल को थोड़ा टॉल बता दूं, पर क्यूबोइडल आप इमेजिन करें, और इनसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल गए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं और बेसल बॉडी के साथ आगे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? आप कहेंगे दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर सीलिया। इस एपिथेलियम को बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम आगे चल के कैसा हो सकता है? ब्रश बॉर्डर्ड हो सकता है और सिलिएटेड हो सकता है। ब्रश बॉर्डर का कोई एग्जांपल याद करेंगे आप? यस सर, ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और सिलिएटेड कहाँ होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम आपकी नेफ्रॉन के अंदर ही होता है, और नेफ्रॉन का जो नेक होता है और लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है वो सिलिएटेड होता है।
अब नेक ऑफ नेफ्रॉन को आप कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक छोटा सा नेफ्रॉन बना के दिखाया था आपको, आई एम रिवाइजिंग दैट पार्ट अगेन। आपके पास ये होगा ग्लोमेरुलस और यहाँ से निकलेगा आपका इफरेंट आर्टरियोल, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका ये वो स्ट्रक्चर है जो कलेक्ट कर रहा है सारा फिल्ट्रेट, इसको आपने बोल दिया बाउमेन कैप्सूल, और इस बाउमेन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शुरू हो जाएगा। लेट्स से दिस हियर इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद नीचे ये आपका मेडुला में डिसेंड करेगा, तो लेट्स से दिस इज योर लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, एंड नेक्स्ट वुड बी योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेट्स से दिस इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड फ्रॉम हियर कम्स कलेक्टिंग डक्ट। अब अगर ये उसका सर है और ये उसका पूरा बॉडी है, थोरैक्स एब्डोमेन, तो नेक कहाँ नजर आता है आपको? यहाँ पर। यू आर होल्डिंग द नेफ्रॉन फ्रॉम हियर, वी कॉल दैट नेक एरिया। तो जहाँ पे बाउमेन कैप्सूल खत्म हो जाता है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शुरू होता है, वो पार्ट होता है आपका नेक पार्ट। और नेक में कैसा होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो पहला आप लोकेशन याद रखेंगे, नेक ऑफ नेफ्रॉन। और जो नेक ऑफ नेफ्रॉन है उसमें कैसा टिश्यू होता है? सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। और ये एग्जैक्टली कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन बाउमेन कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट कि जो लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है, पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर भी होता है बच्चों आपके पास सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। यहाँ पे सर सीलिया क्या काम कर रहे होंगे? जो भी फिल्ट्रेट है वो मूव करता रहे और उसके मूवमेंट के लिए सीलिया भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला मूवमेंट तो जो भी आपके पास प्रेशर है, फिल्ट्रेशन प्रेशर है, उससे मूव करता रहेगा। सेकेंडरली कौन कंट्रीब्यूट करता है? सीलिया मूवमेंट। तो कुछ क्यूबोइडल एपिथेलियम सिलिएटेड होती है इन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो बच्चे ये हुआ आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। अ क्विक रिवीजन, क्यूबोइडल एपिथेलियम में सेल क्यूबोइडल होंगे, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियाई होगा, राउंडेड रहेगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर? स्वेट ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड थायराइड फॉलिकल। वो आपका प्रोटेक्टिव इन नेचर भी हो सकते हैं, लेट्स से पिगमेंटेड, कॉरोइड, स्लरी बॉडी एंड आइरिस। वो गैमेट्स भी बनाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, एंड वो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, पीसीटी एंड डीसीटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई टोल्ड यू अबाउट, वो पार्टिकल को मूव करने में भी हेल्प कर सकते हैं। दैट इज इन योर सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन नेक ऑफ नेफ्रॉन एज वेल एज लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। डन अप टू हियर, राइट। जो नेक्स्ट एपिथेलियम पढ़ेंगे दैट वुड बी योर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में आप क्या याद रखेंगे कि जो सेल्स हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, और कॉलमनर क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि वो टॉल हो गई हैं। तो ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से कुछ टॉल और स्लेंडर सेल अराइज हो रहे हैं। देयर आर सर्टेन सेल्स विच आर टॉल, विच आर स्लेंडर, एंड दे आर लाइक दिस। तो दे एक्चुअली अपीयर लाइक कॉलम, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया कॉलमनर एपिथेलियम। जैसे अपीयरेंस होता है वैसा ही हमने नाम दिया था। ये हमने शायद स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर या कल ही ये डिस्कस कर लिया था। अब ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होंगे उनका न्यूक्लियस सेंट्रल ना होके बेसल न्यूक्लियस होता है। तो दीज आर द वन विच आर हैविंग टॉल सेल एंड दे आर हैविंग अ राउंडेड बेसली लोकेटेड न्यूक्लियाई। तो किस सिंगल लेयर ऑफ सेल में बेसल न्यूक्लियाई होगा? तो आप सिंपल से याद रखेंगे कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर दे आर हैविंग अ बेसल न्यूक्लियाई। अब कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर मॉडिफिकेशन भी होते चले जाएंगे। इनके ऊपर माइक्रोविलाई आ सकता है, ये मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना सकती हैं, इनके ऊपर सीलिया भी आ सकता है। तो ये तो मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया कॉलमनर एपिथेलियम का। आई यूज्ड टू रिमेंबर दीज टॉल कॉलम आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द किचन ऑफ माई बॉडी। एंड हु इज किचन ऑफ माई बॉडी? लीवर। तो हेपेटोसाइट ऑफ लीवर दे आर मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। लोकेशन से शुरू करता हूं इनका मैं। फर्स्ट लोकेशन लीवर। लीवर के अंदर कैसा एपिथेलियम होगा? आप बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। और लीवर जो बाइल बनाता है और वो बाइल जिस डक्ट से बाहर आता है, आई मीन टू से बाइल डक्ट, वो भी कैसा होता है? कॉलमनर एपिथेलियम। तो एक बेसिक सा ये हो गया कि जो बाइल डक्ट है और जो लीवर है वो कॉलमनर एपिथेलियम का बना है। ये बहुत आसान है याद रखना। अब हम चलते हैं, अगर कॉलमनर सेल मॉडिफाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस सेल हियर, और ये सेल जो है आपका मॉडिफाई हो गया है। लेट्स से दिस सेल बिकम समथिंग लाइक दिस। जो एपिकल पार्ट है वो मॉडिफाई होकर सिक्रेटरी हो गया है। लेट्स से इट मॉडिफाइज फ्रॉम एपिकल पार्ट, इट बिकम लाइक दिस, और ये बॉडीली सिक्रेशंस बना रहा है। तो इसको बोलेंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
इट एक्ट लाइक ए ग्लैंड, लेट्स कॉल दैट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जब मॉडिफिकेशन शुरू करेंगे, पहला मैं बताऊंगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉलमनर सेल के ऊपर खूब सारे माइक्रोविलाइज आ सकते हैं, और जब माइक्रोविलाइज होगा बच्चों तो क्या नाम यूज करेंगे, इसके लिए नाम यूज करेंगे ब्रश बॉर्डर्ड। तो आपके पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो सकता है, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, आपके पास ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। इन दोनों को साथ ले लेंगे, कुछ जगह पर ग्लैंड्स हैं और कुछ जगह पर आपका माइक्रोविलाई है। तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गए। व्हाट नेम यू विल यूज, यू विल कॉल दैट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो अभी मैं चलने वाला हूं मॉडिफिकेशन के ऊपर, आई एम गोइंग ऑन मॉडिफिकेशन। पहले मैंने आपको बताया सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के लोकेशन, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, लिवर एंड बाइल डक्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कॉलमनर एपिथेलियम पे ब्रश बॉर्डर्ड हो जाए, मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम हो जाए तो वो कहाँ प्रेजेंट होगी, डोंट फॉरगेट कि जो हमारा गॉल ब्लेडर होता है उसका जो एपिथेलियम होता है वो होता है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। आई रिपीट, हमारा जो गॉल ब्लेडर है उसका जो एपिथेलियम है, अब गॉल ब्लेडर, epithelium of gallbladder is brush bordered columnar epithelium. Easy way to remember. Coming on glandular epithelium, glandular columnar epithelium कहाँ होगा? आप आसान से याद रख सकते हो कि आपकी जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो एपिथेलियम होता है वो कॉलमनर होता है और म्यूकस ग्लैंड वगैरह बनते रहते हैं। तो इन योर स्टमक, इन योर कॉलोन, इन योर रेक्टम एपिथेलियम कैसा होगा? ग्लैंडुलर। तो इन योर स्टमक, colon is the last part of your intestine. और majority of large intestine consists of colon, and colon terminate as rectum. After rectum anus comes. तो यहाँ पे खूब सारे कॉलमनर सेल मॉडिफाई होके बच्चे क्या बनाते रहते हैं? आपका म्यूकस बनाते रहते हैं। तो पहला सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, आंसर इज लिवर एंड बाइल डक्ट। दूसरा ब्रश बॉर्डर्ड, कहाँ होता है ब्रश बॉर्डर्ड? आपका आंसर होगा गॉल ब्लेडर। तीसरा ग्लैंडुलर, कहाँ पर होगा? आपका आंसर होगा स्टमक, कॉलोन एंड रेक्टम। फोर्थ पे आते हैं सर, ऐसा जो ग्लैंडुलर भी है ब्रश बॉर्डर्ड भी है। द फोर्थ वन, इट इज ग्लैंडुलर एज वेल एज ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड प्लस ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। ये कहां पर होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अवर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इफ आई टॉक अबाउट ड्यूडेनम, इफ आई टॉक अबाउट योर इलियम, it is having brush bordered glandular columnar epithelium. So the duodenum and your ileum, it is having a lot of glands as well as a lot of microvilli over columnar epithelium. एक आसान सा सवाल पूछा जाता है बच्चे कि हमारा जो GIT है वो किस सेल से लाइन है? एक आसान सा जवाब होगा कॉलमनर एपिथेलियम। फिर वो पूछता है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होगा? आप आसानी से कह देंगे इंटेस्टाइन। विच पार्ट इज हैविंग अबंडेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड? आपका आंसर होगा इट इज प्रेजेंट ऑन ड्यूडेनम एंड इट इज प्रेजेंट ओवर योर इलियम। लास्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर ये कॉलमनर सेल्स हैं और इनके ऊपर खूब सारे ट्यूबुलिन के हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लेट्स कॉल दैट सिलिएटेड कॉलमनर। और सिलिएटेड कॉलमनर कहाँ कहाँ होता है, मैं पहले आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जब कभी हम ना सीलिया का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो सीलिया से लाइंड है। वो कौन सी है? वो क्यूबोइडल नहीं, वो कॉलमनर है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी सीलिया से लाइन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड भी होता है और कॉलमनर सिलिएटेड भी होता है। और हमारा जो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सीलिया से लाइन है। तो तीन मेजर लोकेशन आप यहाँ पे याद रखेंगे। द वेरी फर्स्ट लोकेशन इज सिलिएटेड कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब कैसा है? सिलिएटेड है, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा, आई रिपीट, अगला जो हम एपिथेलियम पढ़ेंगे वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड पढ़ेंगे। माने कुछ कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई होकर सूडो स्ट्रेटिफाई बन जाती हैं, उनके ऊपर सिलिया होता है। अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूं तो मेजॉरिटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड। पर कुछ जगह लाइक ब्रोंकियोल्स वगैरह में सिलिएटेड कॉलमनर भी होता है। सेकेंड लाइनिंग, दे आल्सो लाइन्स ब्रोंकियोल्स ऑफ अवर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ जहाँ पर नर्वस सिस्टम में CSF फ्लो करेगा वहाँ पर उसके फ्लो करने के लिए जो एपिथेलियम होगा वो सिलेटेड होगा। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो बच्चों, आपको पता होगा कि ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जाता, सिर्फ आउटर एरिया से ही आ जाता है, और जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड मूव करता है उसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोपोगेट करने के लिए जो एपिथेलियम होता है वो सिलिएटेड होता है, और वहाँ पर इसका एक स्पेशल नाम यूज करते हैं, देयर वी आल्सो कॉल्ड इट एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल और एपेंडाइमल एपिथेलियम काहे की बनी होती है? आपका आंसर होगा सिलिएटेड कॉलमनर। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन ए क्विक रिवीजन, और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज बच्चों हमने शुरू किया स्पेशलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पहले मैंने आपको बताया माइक्रोविलाई के बारे में, देन मैंने आपको बताया सीलिया के बारे में, स्ट्रियोसीलिया के बारे में, और फिर मैंने आपको, अभी स्ट्रियोसीलिया बचा हुआ राइट, और फिर मैंने आपको बताया एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रॉपर्टीज के बारे में। सिंपल एपिथेलियम वो होता है जो सिंगल लेयर्ड होता है, और अगर सेल फ्लैट है, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बना दी है तो वो स्क्वेमस है। जहाँ भी डिफ्यूजन होगा बॉडी में वहाँ पे स्क्वेमस होगा, चाहे वो एल्वोलाई है चाहे वो ब्लड वेसल है। इवन जो रेटेटेस्टिस होता है उसके अंदर स्क्वेमस होता है, डिसेंडिंग लिब ऑफ लूपोफेन स्क्वेमस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी बाउमिन कैप्सूल की लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस से बनी होती है। स्क्वेमस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड है, पर वो थोड़ा फ्लैटेंड हो जाता है। स्क्वेमस सेल को पेमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि वो टाइल लाइक लुक दे रही हैं, और टी सेलेटेड कहते हैं क्योंकि कुछ जगह पर वो वेवी हो जाती है। कहाँ पर वेवी होती है? सिलोमिक एपिथेलियम में जहाँ उनको मेसोथेलियम कह रहे हैं, और ब्लड वेसल्स में जहाँ उनको एंडोथेलियम कह रहे हैं। ब्लड वेसल एंड हार्ट दोनों में एंडोथेलियम वर्ड यूज कर लेते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम सेंट्रली लोकेटेड राउंडेड न्यूक्लियाई, सिक्रेटरी इन फंक्शन होती है, एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन होती है, एंड वो गैमेट फॉर्मेशन भी करती है। थर्ड, कॉलमनर एपिथेलियम, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर सिक्रेटिव इन नेचर, और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगी। कहाँ प्रोटेक्शन कर रही है? तो यू बेटर नो कि जो लाइनिंग है लीवर का बाइल डक्ट का वहाँ प्रोटेक्शन कर रही है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ कर दी है? इंटेस्टाइन में मेजर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो यही सेल करती है। सिक्रेशन म्यूकस ग्लैंड सिक्रेशन करती रहती है। सिलिएटेड, दे आल्सो हेल्प इन द प्रोपेलिंग ऑफ पार्टिकल। क्या क्या प्रोपेल करता है? फैलोपियन ट्यूब में ओवा को, वेंट्रिकल्स में CSF को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया है तो उसको थ्रो करने का जो अटेम्प्ट होता है उसको कफिंग कहते हैं, या उनको विदाउट कफ भी प्रोपेल करता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रियोसिलिएटेड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम विच वी कॉल्ड सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। फॉर दिस लेक्चर हम यही रुक जाते हैं, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग फॉर दिस। This is all for today. Thank you so much. Class is over.